Good morning, students. This is our next video lecture on unit number 1, unit number 2, which is Laplace transform. All of you know that in the previous video we discussed about some properties of Laplace transform as well as periodic function and its example. Okay. Now in today's video we are going to discuss the next topic, which is unit step function. And unit step function is also called as Heaviside unit step function. Heaviside unit step function. Okay. In this video we discuss the unit step function. First of all, we discuss the definition of unit step function. Now, unit step function is defined as the value of function at the value of the function is 1 when t is greater than 0, and the value of the function is 0 when t is less than 0. Means when t greater than 0 means if the t is positive, then at that time the value of the function is 1, then it is called as unit step function, and if it is negative, then the value is 0. It is called as the unit step function, and it is defined as u of t equal to 0 when t less than 0 and u of t is equal to 1 when t is greater than 0. Okay, and it is also I already told you that function is also called as Heaviside unit step function. So it is also denoted as h of t also. So h of t or u of t is nothing but the unit step function. Okay, students. Now, second part of unit step function is the displaced unit step function. Displace means after some displacement, what is the value of unit step function? Displaced unit step function is defined as u of t minus a is equal to 0 when t is less than a, and the value of u of t minus a is 1 when t greater than a. Means here, suppose if at any point and if we displace the unit step function u of t at a displacement a, then what we get? At that point we get unit step function. Means after that point, means right of the point we get the value of function is 1 when that t greater than a, means after the right of the point a, and left of the point a the value of function is 0, means when t is less than a. That is called as the displaced unit step function, and which is unit step function. देखो दोनों में सिंपली फर्क क्या है? यूनिट स्टेप फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू 1 कब रहेगी? व्हेन टी इज पॉजिटिव. ओके, एंड फंक्शन की वैल्यू 0 कब रहेगी? व्हेन टी इज नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स व्हेन टी इज लेस देन 0. ओके, अब डिस्प्ले यूनिट स्टेप फंक्शन मतलब सपोज हमने एक आधा पॉइंट लिया, पर्टिकुलर पॉइंट, तो उस पॉइंट के राइट साइड में मीन्स पॉइंट सपोज हमारा पॉइंट ए, तो टी ग्रेटर देन ए, वी गेट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फंक्शन, एंड जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में मीन्स उसकी नेगेटिव वैल्यू के लिए और उससे लेस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 0. इट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन. ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट सम फॉर्मूलाज ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन. जैसे कि हमने देखे हैं कि फॉर्मूलाज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वैसे सिमिलर फॉर्मूलाज ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन. नाउ फर्स्ट फॉर्मूला इज लाप्लास ऑफ u of t. नाउ u of t means unit step function. Unit means 1. So what is the value of Laplace of 1? That is 1 upon s. So Laplace of u of t is nothing but Laplace of 1, and that is 1 upon s. Okay. Then second formula is Laplace of u of t minus a. Now u of t minus a with the displaced unit step function. अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा फंक्शन डिस्प्लेस हो रहा है पॉइंट ए से. So Laplace of u of t minus a become e raised to minus as upon s. Okay. Then third formula is Laplace of f of t into u of t. Now Laplace of f of t into u of t is nothing but, देखो u means 1 होगा, so it become f of t into 1 means Laplace of f of t, and we know that Laplace of f of t become f of s. So what is the third formula? That is Laplace of f of t into u of t is equal to Laplace of f of t or f of s. Okay. Then next formula is Laplace of f of t minus a into u of t minus a. यहाँ पे दोनों फंक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, so it become e raised to minus as into f of s. Okay. Then next formula is Laplace of t minus a into u of t minus a. So it become e raised to minus as into Laplace of f of t plus a. Okay. After that,
देखो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। अब देखो यहाँ पे टी ऑफ माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए था तो सिंपली क्या था एफ ऑफ एस, लेकिन यहाँ पे अब टी की जगह टी माइनस ए इज रिप्लेस बाय टी, सो यहाँ पे क्या होगा दैट माइनस ए बिकम माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए था हमारा e रेज़ टू माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। यहाँ पे क्या हो रहा है हम एफ ऑफ टी की जगह टी माइनस ए की जगह टी पुट कर रहे हैं, इट बिकम एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस ए एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज if Laplace of f of t is equal to f1t and f2t, suppose हमारे पास फंक्शन की दो वैल्यू है, then first in that case what we have to in that case if we have to obtain the Laplace transform of the following of that term, then what we have to do, first of all we convert it into unit step function। यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट कब होगा कि जब उसको u की टर्म मल्टीपल रहेगी। ओके, तो इस टाइप के फंक्शन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू यूनिट स्टेप फंक्शन एंड देन वी ऑब्टेन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन। सो फॉर अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ टी इक्वल टू f1t f2t दो वैल्यू है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज मोर देन 1 रहेगी, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो लाप्लास ऑफ if f of t is f1t and suppose we have two values and first value is in the range 0 to a and second value is in the range a to b। Okay, then what is the conversion of that function into unit step function, that is f1t into, अब देखो यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है अपर लिमिट a है, तो हम क्या करेंगे अपर लिमिट, अब देखो यहाँ पे 0 है तो ये आएगा u ऑफ t माइनस 0 मीन्स u ऑफ t माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस a। मतलब हमें क्या करना है सिंपली यहाँ पे एकदम इजी पार्ट है, f1t फर्स्ट फंक्शन इनटू जो भी हमारे लिमिट रहेगी उसको t में से माइनस करना है। लोअर लिमिट 0 था इसलिए हमने क्या लिया u ऑफ t माइनस ए माइनस अपर लिमिट a है u ऑफ t माइनस ए। ओके, दिस इज फर्स्ट टर्म। नाउ सेकंड टर्म क्या आएगी हमारी f2t इनटू, देखो यहाँ पे a है तो u ऑफ t माइनस ए माइनस सेकंड वैल्यू क्या लिमिट b है तो u ऑफ t माइनस ए and which is called as the conversion of function into unit step function। जो हमारा फॉर्मूला नंबर 6 है वो एक्चुअली क्या है, कन्वर्शन ऑफ फंक्शन इनटू यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, इसके बाद और एक और फॉर्मूलाज है वो हम देखेंगे। So students, the next formula, if f of t equal to f1t f2t and here suppose the range is 0 to a and here t greater than a। सपोज हमें यहाँ पे देखो लोअर लिमिट गिवन है तो हम क्या करेंगे सिंपली u ऑफ t माइनस लोअर लिमिट माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस अपर लिमिट। सपोज हमें लोअर लिमिट गिवन नहीं है, t ग्रेटर देन a मीन्स a लेस देन t। ओके, तो यहाँ पे गिवन है एक लिमिट गिवन नहीं है तो इस टाइप में हमें क्या करना है सिंपली f1t, यहाँ पे तो अपर माइनस लोअर माइनस अपर आएगा मीन्स u ऑफ t माइनस 0 माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस a। ओके, प्लस यहाँ पे सिंपली एक ही लिमिट गिवन है सो हम डायरेक्टली क्या करेंगे सेकंड टर्म f2 इंटू यू ऑफ t माइनस ए। ओके, एकदम इजी फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको सब फॉर्मूला ध्यान रखना है। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, नाउ सी द एग्जांपल, इवैल्यूएट लाप्लास ऑफ t स्क्वायर इंटू यू ऑफ t माइनस 3। ओके, अब देखो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है लाप्लास ऑफ t स्क्वायर इंटू यू ऑफ t माइनस 3। अब हमें क्या करना है कि जो एग्जाम्पल है उसके लिए हमारे पास जो 7 फार्मूला है उसमें से कौन सा फार्मूला अप्लीकेबल है वो पहले देखना है। देखो फर्स्ट क्या है लाप्लास ऑफ 1 अप्लीकेबल है क्या, नहीं है। यू ऑफ t माइनस ए नहीं है अप्लीकेबल क्योंकि यहाँ पे t स्क्वायर मल्टीपल है, मतलब फार्मूला नंबर 1 2 इज नॉट अप्लीकेबल। देन फार्मूला नंबर 3 देखो यहाँ पे सिंपली u ऑफ t है लेकिन यहाँ पे u ऑफ t माइनस 3 है, इट इज नॉट अप्लीकेबल। ओके, फॉर्मूला नंबर 4 देखो, अब 4 में क्या है f ऑफ t माइनस है t u ऑफ t माइनस है, दोनों जगह पे t माइनस है। सो स्टूडेंट्स द एग्जांपल, इवैल्यूएट लाप्लास ऑफ t स्क्वायर इनटू u ऑफ t माइनस 3। हमने यहाँ पे देखा फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 इज नॉट अप्लीकेबल। ओके, अब देखो यहाँ पे 5th नंबर का फॉर्मूला क्या है, f ऑफ t इंटू यू ऑफ t माइनस ए। ओके, यहाँ पे f ऑफ t इंटू यू ऑफ t माइनस ए है,
यहाँ पे भी क्या है, टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी माइनस 3 है, तो मतलब यू ऑफ टी माइनस ए और यू ऑफ टी माइनस 3 की टर्म सिमिलर है। अब इसका कोएफिशिएंट देखो एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी विद द फंक्शन ऑफ टी ओनली, और यहाँ पे भी टी स्क्वायर क्या है, सिंपली फंक्शन ऑफ टी है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 5 अप्लाई कर सकते हैं। सो वी यूज हियर फॉर्मूला नंबर 5. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन हियर we know that कौन सा फॉर्मूला है, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ए एस इंटू लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए। ओके, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो अब देखो हम सबसे पहले हमें क्या करना है कि ए की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, सिंस व्हाट इज ए इज इक्वल टू 3। अगर हम गिवन एग्जाम्पल और फार्मूला अगर कंपेयर करते तो हमें ए की वैल्यू 3 मिलेगी। सो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा गिवन एग्जाम्पल है उसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी गेट, सो लैप्लस ऑफ टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, e रेज़ टू पावर माइनस 3s इंटू लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी प्लस 3। ओके, नाउ we have to write down the value of f of t plus 3. अब हमें f of t plus 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो उसके पहले हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ f of t। नाउ हियर व्हाट इज f of t, देखो f of t के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा फॉर्मूला है और जो एग्जाम्पल है उसमें u of t माइनस एक कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे f of t है और यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर है। मीन्स हमें जस्ट क्या करना है, ये दोनों को कंपेयर करना है। आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट एफ ऑफ टी, एंड व्हाट इज एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए। सो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ यू ऑफ टी माइनस 3 इज टी स्क्वायर, सो एफ ऑफ टी इज टी स्क्वायर। नाउ फ्रॉम एफ ऑफ टी वी गेट एफ ऑफ टी प्लस 3, means just replace t by t plus 3, means we get t plus 3 whole square, and t plus 3 whole square is nothing but t square plus 3 into 2, 6t plus 9 by using the formula a plus b whole square. So we get f of t plus 3. Now we have to obtain Laplace of f of t plus 3. So what we do, we just taking Laplace on both sides, that is equation number 1. Now taking Laplace on both sides, Laplace of f of t plus 3 is equal to Laplace of t square, Laplace of t to the power n क्या है, n factorial upon s raised to n plus 1. So यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 factorial upon s raised to power 2 plus 1 3 plus 6 into Laplace transform of t क्या है, t to the power 1, 1 plus 1 2. यहाँ पे क्या आएगा हमारा s raised to power t to the power n का लाप्लास n फैक्टोरियल, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 1 फैक्टोरियल, मीन्स 1 अपॉन s to the power 1 plus 1 मीन्स s स्क्वायर प्लस 9 इंटू लाप्लास 9 का मल्टीपल क्या है 1, लाप्लास ऑफ 1 क्या है 1 अपॉन s, मीन्स इट बिकम 9 by s. Now we put the value of 2 factorial, we put the value of Laplace of f of t plus 3 in equation number 1. So we get required Laplace transform of the given function. So equation 1 becomes equation 1 is Laplace transform of t square into u of t minus 3 is equal to e raised to minus 3s into क्या मिला हमें 2 factorial, 2 factorial means 2, 1 into 2 2, 2 upon s cube plus 6 upon s square plus 9 upon s, and which is the required Laplace transform of the given function. Okay student, in this way we get the Laplace transform of the given function using the formula of unit step function. Okay, after that we will discuss another example. So students, in the next example, find the Laplace transform of cos of t minus 1 into u of t minus 1.
ओके, अब देखो हमारे पास ये फॉर्मूले है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा यहाँ पे देखो, t माइनस ए दोनों में सेम है, कहाँ पे है, फॉर्मूला नंबर 4 में. सो वी यूज फॉर्मूला नंबर 4. सो वी नो दैट the Laplace transform of f of t minus a into u of t minus a is equal to, क्या है फॉर्मूला, e raised to minus as into f of s. And what is f of s? F of s is the Laplace of f of t. ओके, तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a की वैल्यू. बाय कंपेयरिंग फॉर्मूला एंड गिवन इक्वेशन we obtain the value of a. What is a here? Here a is equal to 1. So we get Laplace of cos of t minus 1 u of t minus 1 equal to e raised to minus 1 into s into Laplace of f of t. Okay. After that we have to obtain f of t. That is equation 1. Now, what is f of t here? So, student, what is f of t? Now, f of t के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, देखो, if we compare this two, then we get f of t minus a. f of t minus a हमारे पास क्या है, cos of t minus 1. ओके, एंड इफ वी हैव टू ऑब्टेन f of t, देन हमें क्या करना पड़ेगा, t माइनस ए को t से रिप्लेस करना है. ओके, तो t माइनस ए हमारा 1 है. ओके, t माइनस ए और cos ऑफ t माइनस 1 ये हमारा 1 है. तो f of t कैसे फाइंड करेंगे हम, जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग t माइनस 1 इक्वल टू t. सो व्हाट इज f of t, वी गेट cos t. ओके, देन ऑब्टेन लाप्लास ऑफ f of t. Now Laplace of f of t क्या मिलेगा, Laplace of cos t. And what is Laplace of cos t? Laplace of cos t is s upon s square plus 1. Okay, now put the value of Laplace of f of t in equation number 1 and that is the required solution. So equation 1 becomes, that is Laplace of cos of t minus 1 into u of t minus 1 equal to e raised to minus s, and Laplace of f of t is s upon s square plus 1, and which is the required Laplace transform of the given function. Okay students, in this way we get the solution, okay, with the help of the formulas. Okay, after that we will discuss another example. So students, the next example, express f of t equal to t square 0 less than t less than 2, f of t equal to 4t t greater than 2 in terms of unit step function and find Laplace transform. Okay, means first of all we have to express that f of t in terms of unit step function. Sometimes आपको यहाँ पे ऐसा भी वर्ड रहेगा, express the given function into heavy side unit step function. ओके, दोनों का मीनिंग सेम ही है, मतलब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ पे f of t को यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, अब इसको हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला नंबर 6 या तो फॉर्मूला नंबर 7. यहाँ पे सिंपली लोअर, अब एक ही लिमिट दिया है तो एक ही लिमिट आएगा, अगर दो लिमिट दे रहे थे तो हम क्या करते हैं, अब लोअर माइनस अपर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्शन. हाँ, सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको, वी हैव, देखो कन्वर्ट करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, f of t इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू है हमारी टी स्क्वायर, फंक्शन की दो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कितनी भी रहो, आप सेम उसे आपको अप्लाई करना है. फंक्शन की फर्स्ट वैल्यू इनटू यहाँ पे u ऑफ t माइनस 0, u ऑफ t माइनस 0 माइनस u ऑफ t माइनस 2. ओके, प्लस सेकंड वैल्यू के लिए सेकंड वैल्यू इनटू
यहाँ पे सिंपली एक ही वैल्यू गिवन है, एक ही लिमिट गिवन है, तो यहाँ पे क्या आएगा u ऑफ t माइनस 2। अगर यहाँ पे भी दो वैल्यू रहते, सपोज यहाँ पे दो वैल्यू रहते तो हम क्या करते, सेम प्रोसीजर अप्लाई करते। ओके, सो आफ्टर दैट f ऑफ t इज इक्वल टू t स्क्वायर। अब देखो u ऑफ t माइनस 0 बिकम u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4t इंटू u ऑफ t माइनस 2। Okay, now it can be written as so student, after that we get f of t equal to t square into u of t, just multiply करेंगे माइनस t square into u of t minus 2 और नेक्स्ट टर्म प्लस 4t into u of t minus 2. Okay. Then f of t is equal to t square u of t keeping as it is. अब देखो सेकंड एंड थर्ड टर्म में u of t minus 2 कॉमन है, इसको कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4t minus t square into u of t minus 2. Okay, and this is the conversion of given function into unit step function. Okay, ये हो गया हमारा कन्वर्शन। अब इसका हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है, सो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, सो वी गेट लाप्लास ऑफ f of t is equal to लाप्लास ऑफ t square u of t प्लस लाप्लास ऑफ 4t minus t square into u of t minus 2. Okay, अब देखो फर्स्ट टर्म लाप्लास ऑफ t square into u of t, and what is u of t? u with the unit step function, unit means 1, so it becomes simply laplace of t square plus second term as it is 4t minus t square into u of t minus 2. Okay, अब हमें लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर मिल जाएगा। व्हाट इज लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर? दैट इज 2 फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू पावर 3, t रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अब देखो सेकंड टर्म हाँ हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को सेपरेट सॉल्व करेंगे। लाप्लास ऑफ 4t माइनस टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ t माइनस 2, इक्वेशन नंबर 1। ओके, दैट इज लाप्लास ऑफ f ऑफ t. Now we solve second term separately. So we get स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड टर्म सॉल्व करना है हमें, लाप्लास ऑफ 4t माइनस टी स्क्वायर u ऑफ t माइनस 2. नाउ फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4t minus t square into u of t minus 2. ओके, अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, f of t into u of t minus है, सो वी यूज लाप्लास ऑफ f of t into u of t minus a is equal to, क्या है हमारा फॉर्मूला, e raised to minus as into लाप्लास ऑफ f of t plus a. ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो हियर व्हाट इज a? a इज इक्वल टू 2, a इज 2, सो वी गेट लाप्लास ऑफ 4t माइनस टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ t माइनस 2 इक्वल टू e रेज़ टू माइनस 2s इंटू लाप्लास ऑफ f ऑफ t plus 2. Okay, after that we have to find Laplace of f of t plus 2. So what we have to find? We have to obtain f of t first, equation number 2. Now here what is f of t? f of t क्या है, 4t minus t square. Okay, so what is f of t plus 2? t plus 2 क्या मिलेगा हमें, 4 into t plus 2 minus t plus 2 whole square. Okay, so it become 4t plus 8 minus यहाँ पे क्या होगा t square
4t minus 4t, ये माइनस साइन है यहाँ, plus 4 minus 4. Okay, so it become minus t square. So plus 4t minus 4t get cancel. Plus 8 minus 4 plus 4. Okay, so that is f of t plus 2. Now obtain Laplace of f of t plus 2. Now Laplace of f of t plus 2 is nothing but Laplace transform of 4 minus t square. So it become Laplace of 4. 4 तो कांस्टेंट है, 4 का मल्टीपल क्या है 1, तो Laplace of 1 is 1 upon s, 1 upon s into 4, 4 upon s minus Laplace of t to the power n is n factorial upon s raised to n plus 1. यहाँ पे क्या आएगा 2 factorial means 2 upon s raised to 3. Okay, now we put this value in equation number 2. So our equation 2 becomes Laplace transform of 4t minus t square u of t minus 2 is equal to e raised to minus 2s into Laplace of f of t plus 2 क्या है 4 by s minus 2 by s square cube. Okay, now we put this value in equation number 1. So equation 1 becomes Laplace transform of f of t is equal to 2 factorial is 2, 2 upon s cube plus सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है e raised to minus 2s into 4 by s minus 2 by s cube. Okay, now it can be also written as, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 4 e raised to minus 2s upon s. Okay, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में 2 by s cube कॉमन निकलेगा प्लस 2 by s cube कॉमन वी गेट 1 1 और यहाँ पे minus 1 minus e raised to minus 2s. In this way we get the required Laplace transform of the given function. Okay, अगर आपको यूनिट स्टेप में कन्वर्ट करना है फंक्शन, अगर f of t की वैल्यू अगर मोर देन 1 है तो उसको पहले कन्वर्ट करना, बाद में लाप्लास अप्लाई करना. स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. एक एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए है. सो स्टूडेंट्स, एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए है. यहाँ पे आपको f of t गिवन है, f of t की दो वैल्यूज है. सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट स्टेप फंक्शन में एंड देन ऑब्टेन दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके स्टूडेंट, ये जो एग्जांपल है एग्जांपल सिमिलर है लास्ट वन जो हमने एग्जांपल नंबर 3 लिया लास्ट का, उसकी प्रोसीजर इसकी प्रोसीजर टोटली सेम है. ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. So thank you very much.